Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the fourth chapter of class 5th subject science and the name of the chapter is nervous system. Dear children, we already know that our body is made up of many organs. Together, many of these organs form the organ system. Organs in the organ system together perform a specific function and contribute in the proper functioning of the body. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Brain is an important part which controls our body. In this video, we will learn about the nervous system, different organs of the nervous system, reflex action, sense organs, and how to take care of them. Nervous system. The nervous system controls the different organs of our body. नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी. इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड द ह्यूमन कंप्यूटर. ब्रेन को ह्यूमन का कंप्यूटर मीन सीपीयू भी कहा गया है. क्यों? क्योंकि ब्रेन जो होता है वो कंप्लीट बॉडी में होने वाले वर्क को कंट्रोल करता है. द ब्रेन नॉट ओनली कंट्रोल्स व्हाट वी थिंक एंड फील बट ऑल्सो हाउ वी लर्न एंड रिमेंबर एंड व्हाट वे वी मूव. ब्रेन जो होता है वो ओनली थिंक एंड फील को ही कंट्रोल नहीं करता बट ये लर्न एंड रिमेंबर एंड वे दैट वी मूव उन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करता है. द ब्रेन कंट्रोल्स मैनी अदर थिंग्स सच एज द बीटिंग ऑफ हार्ट, the digestion of food, and yes, even the stress we feel. If we think of the brain as central computer that controls all bodily functions, the nervous system is like a network that relays messages back and forth from the brain to the different parts of the body. It does this via the spinal cord which runs from the brain down through the back and contains thread-like nerves that branch out to every organ and body part. Brain. Brain is the main organ of the nervous system. It is a soft organ which controls all the functions of our body. यह एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है जो कि बॉडी में होने वाले सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इट प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी क्लोज्ड स्ट्रक्चर स्कल. इट सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन जो होता है वो स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है. यह बॉडी के सभी पार्ट्स में मैसेज सेंड करता है और सभी पार्ट्स की इंफॉर्मेशंस रिसीव भी करता है. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. Cerebrum. The biggest part of the brain is cerebrum. Cerebrum is the thinking part of the brain and it controls our sense organ. ब्रेन का सबसे बड़ा और मेन पार्ट सेरेब्रम होता है. यह ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है और साथ ही ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है. यू नीड योर सेरेब्रम टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स. हम जब मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज़ में लेते हैं? सेरेब्रम. फिगर आउट ए वीडियो गेम एंड ड्रॉ ए पिक्चर्स. Your memory lives in the cerebrum.
मेमोरी जो होती है वो सेरेब्रम में रहती है, बोथ शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. The cerebrum also help you reason, like when you figure out that you had better do your homework now because your mom is talking you to a movie later. Cerebellum. The cerebellum is at the back of the brain below the cerebrum. cerebellum जो होता है वो ब्रेन में बैक साइड cerebrum के नीचे की तरफ होता है. It has a lot smaller than the cerebrum. यह साइज में सेरेब्रम से बहुत छोटा होता है, बट इट हैज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लेकिन यह है ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. बिकॉज ऑफ योर cerebellum you can stand upright, keep your balance and move around. सेरेबेलम की वजह से हम मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, हमारा बैलेंस बना सकते हैं. थिंक अबाउट ए सफर राइडिंग द वेव्स ऑन दिस बोर्ड. मेडुला oblongata. Medulla oblongata is also called as the ब्रेन स्टेम. इसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है. इट इज ए स्टेम शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाइज बिलो द सेरेब्रम बट इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम. यह जो होता है मेडुला ओब्लोंगेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्टेम के जैसी. यह सेरेब्रम के नीचे लेकिन सेरेबेलम के आगे की तरफ होता है. It connects the rest of the brain to the spinal cord, which runs down your neck and back. It controls involuntary actions. कौन से actions control करता है? Involuntary, like breathing air, digesting food and circulating blood. Spinal cord. The spinal cord is a thick cord of nerve tissue which extend down from the brain stem. स्पाइनल कोड जो होती है वो नर्व्स टिश्यू से बनी एक थिक कोड होती है जो कि ब्रेन स्टेम के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है. इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. यह किससे प्रोटेक्ट रहती है? बैकबोन से. दिस स्पाइनल कोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी. यह जो स्पाइनल कोड होती है यह बॉडी के पार्ट से ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. इट इवन कंट्रोल्स द एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन. सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. नर्व्स. Nerves are long thread-like structures made of cells called nerve cells. A network of nerves runs through our body. The message travel from nerve cells all over body. मैसेज जो होते हैं वो पूरी बॉडी में नर्व्स के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं. They travel along nerve fibers to nerve cells in the brain. Sensory nerves pass through the spinal cord and carry messages to the brain. Sensory nerves मैसेज को स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक ले जाती है. Sensory nerves collect the information and send it to the brain along with the network. ये इस नेटवर्क की हेल्प से बॉडी के पार्ट से क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उन इंफॉर्मेशंस को ब्रेन को सेंड कर देती है. मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस बैक फ्रॉम द ब्रेन. मोटर नर्व्स टेक द ब्रेन्स ऑर्डर्स बैक अलोंग अनदर नेटवर्क. मोटर नर्व्स क्या करती है? मोटर नर्व्स ब्रेन से वापस जो मैसेज लेकर आती है. ब्रेन को मैसेज कौन सेंड करता है? सेंसरी नर्व्स. और मोटर नर्व्स क्या करती है? ब्रेन उस पे वर्क करता है और वर्क करने के बाद में जो मैसेज वापस सेंड करता है वो मैसेज मोटर नर्व्स बॉडी के पार्ट्स तक वापस लेकर आती है. नाउ टाइप्स ऑफ नर्व्स.
In our body, there are three kinds of nerves. Now, first is sensory nerves. These nerves carry messages from sense organ to the brain or the spinal cord. These messages are information about such things as temperature, smell, color और pressure. सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है. ये मैसेज किसके बारे में होते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, स्मेल, कलर, प्रेशर, इन सब बातों की इंफॉर्मेशंस होती है. मोटर नर्व्स. These nerves send messages from the brain or the spinal cord to the muscles of the different organs. These are the messages that make the muscles move. Motor nerves messages brain से अलग अलग organ की muscles को send करती है. इन messages में क्या होता है, इन messages का जो order होता है वो लेके muscles जो होती है वो क्या करती है, मूव, उनमें मूवमेंट होता है. मिक्स्ड नर्व्स. दीज नर्व्स कनेक्ट सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स. दीज मैसेजेस वर्क बोथ वेज. मिक्स्ड नर्व्स सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों से कनेक्ट रहती है और ये मैसेज दोनों तरह से वर्क करते हैं. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू डिफरेंट ऑर्गन्स and they bring message from the organs to the spinal cord or the brain. Mixed nerves ब्रेन या स्पाइनल कोड से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जाती है और डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक मैसेज वापस लेकर आती है. These nerve cells are found in the brain and the spinal cord. Reflex action. A automatic quick action that our body makes often without us even thinking about it in response to a stimulus is called reflex actions. बॉडी में होने वाला ऑटोमेटिक क्विक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो बिना थिंकिंग के स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देता है. ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस इंस्टेंट एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच ए शार्प ऑब्जेक्ट द नर्व एंडिंग्स इन द फिंगर फील्स द पेन एज द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कोड थ्रू द सेंसरी नर्व्स. और ये मैसेज क्या होता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड तक जाता है. The spinal cord sends the command back through the motor nerves to the muscles of the hand to move away. और स्पाइनल कोड क्या करता है, बैक मैसेज जो होता है वापस ऑर्डर देता है किसको, मोटर नर्व्स को. और मोटर नर्व्स ये मैसेज लेकर उस हैंड की मसल्स तक जाती है और हमें अपने हैंड को वहां से हटाने के लिए कहते हैं. And we away our hand from sharp object. Sense organs. Sense organs are the windows to the outside world and connect us to our surrounding. Sense organs आउटसाइड की विंडो के जैसा होता है जो कि हमें हमारे सराउंडिंग से कनेक्ट करके रखता है. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Now first is eyes. Eyes are very important part of our sense organs. The different parts of eyes are eyelid, pupil, eyelashes, iris, cornea, retina and optic nerves. Now eyelids. It covers our eyes when we sleep or blink our eyes. Eyelashes protect our eyes from dust. Pupil is black circle that let light into our eyes. Iris is colored part around the pupil. Cornea is circular and transparent front portion of eyes.
Retina, it is back of the eye where images are formed. हमारी आईज में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना में. ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट द आईज टू द ब्रेन. आईज से जो मैसेज सेंड किए जाते हैं ब्रेन को, वो कौन करता है? कौन सी नर्व्स करती है? ऑप्टिक नर्व्स. ये नर्व्स ब्रेन से कनेक्ट रहती है. केयर ऑफ eyes. Eyes are very delicate. We must take care of our eyes. Wash your eyes by splashing water on them. Do not read in dim light. Maintain a proper distance between your eyes and book. Make sure that you sit in the right posture while reading and writing. Watching TV for long duration may harm our eyes. Keep a distance of 6 feet from the television when you watch TV. Avoid rubbing eyes with dirty hands. Too much playing computer games is also harmful to our eyes. Make sure never to use someone else's towel if he and she has an eye infection. Ears. Ears help us to hear the sounds around us. They also help us to maintain balance. The structure of ear is divided into 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. The outer ear collects sound waves and passes them into middle ear. Middle ear helps to amplify the sound received and carries it to the inner ear. In the inner ear, the sound is carried by the auditory nerve to the brain. Outer ear sound waves को collect कर middle ear को pass करता है. Middle ear amplify sounds receive कर और इसको inner ear को pass करता है. इनर ईयर साउंड को ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक ले जाता है. केयर ऑफ ईयर्स. डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट्स इन योर ईयर्स. इट मे इंजर द ईयर ड्रम. यूज एन ईयरबड टू क्लीन योर ईयर्स. अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक विथ प्लग्ड ईयरफोन्स. डू नॉट लेट वाटर enter your ears. Use a dry towel to clean them. Nose. Nose is a prominent part of our face. We breathe and smell through nose. In the upper part of the nostrils, there are nerve endings of the olfactory nerves. These nerves help us to sense smell. ये जो नर्व्स होती है इनकी हेल्प से हमें स्मेल का पता चलता है. द नर्व एंडिंग्स गेट ब्लॉक्ड व्हेन वी हैव कोल्ड एंड दस वी आर अनेबल टू स्मेल एनीथिंग. जब हमें ठंडी लग जाती है तब ये नर्व एंडिंग्स जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार की स्मेल का पता नहीं चलता है. द टाइनी हेयर इनसाइड द नोज एक्ट्स एज फिल्टर फॉर डस्ट पार्टिकल्स. इनके अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये हेयर्स फिल्टर का काम करते हैं. ये डस्ट पार्टिकल्स को हमारे लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं. दे प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द नोज व्हेन वी ब्रीथ इन एयर. केयर ऑफ द नोज. ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन. Do not put sharp object in your nose. Do some breathing exercises every day. Avoid digging your nose. Tongue. The tongue enables us to taste the food and help us to speak. टंग जो होती है उसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप के फूड का पता कर सकते हैं एंड साथ ही हमें स्पीक करने में हेल्प करती है. देयर आर टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टेस्टेस
sweet, salty and bitter. टेस्ट बर्ड्स जो होती है वो टंग पे प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग टेस्ट का पता कर सकते हैं कि खट्टा है, मीठा, नमकीन, जैसा भी होता है वो टेस्ट हमें किससे पता चलता है? टेस्ट बर्ड्स से. नाउ केयर ऑफ द टंग. हमें अपनी टंग की केयर कैसे करनी चाहिए? क्लीन योर टंग विथ ए टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ. जब हम ब्रश करते हैं तो हमें टंग क्लीनर से डेली अपनी जो टंग है उसको क्लीन करना चाहिए. स्किन. द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन. The skin has millions of nerve endings which help us to feel hot, cold, pain, pressure or touch. There are tiny pores on the surface of the skin which help the body waste to come out as sweat. स्किन पे टाइनी पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस पे, जिससे कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो बाहर आ जाता है. किसके रूप में? स्वेट के रूप में. द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. स्किन जो होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है. नाउ केयर ऑफ द स्किन. टेक बाथ रेगुलरली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द बॉडी. Wear clean clothes. Use an antiseptic cream if there is a cut or a scratch on the skin. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.